Now, today, in our first chapter, collection of data, today we are going to learn about method of questionnaire. Now, the meaning a list of logically arranged questions relevant to the object of the study is made. The space between the question is provided for the answers. A list of questions is prepared in such a way is called questionnaire. The method of obtaining information using such type of questionnaire is called a method of questionnaire. So when the field of inquiry is very wide and very large, at that time most of the investigator use a method of questionnaire. So whenever we have to use this method of questionnaire, so first we have to prepare all the relevant questions related to our study, object study, and for all the question we have to provide a space for giving the answers. So when we prepare a list of such questions, that is called a questionnaire. तो आपको जिसके भी बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं उसके रिलेवेंट क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन रेडी कर दो और हर क्वेश्चन के सामने आपको आंसर के लिए स्पेस प्रोवाइड करना है। जैसे कोई स्कूल है, जब आप 11 कॉमर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए गए तो स्कूल को स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 11 कॉमर्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की चाहिए, तो उन्होंने एक लॉजिकली सब क्वेश्चन रेडी कर दिए। ऊपर जो टाइटल है उसके अंदर स्कूल का नेम होगा, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल या फेथ हायर सेकेंडरी स्कूल या ग्लोरियस पब्लिक स्कूल या सेंट जेवियर्स, ऐसा लिखा होगा। फिर लिखा होगा एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म लिखा तो मतलब आपको मालूम हो गया कि भाई एडमिशन रिलेटेड मेरे को इंफॉर्मेशन देनी है। स्टूडेंट नेम एंड स्पेस इज गिवन, एड्रेस एंड स्पेस इज गिवन फॉर एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट नंबर, बर्थ डेट, मीडियम गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल, व्हाट इज योर लास्ट स्कूल नेम। तो जो भी क्वेश्चन आपको रिलेटेड लगे हैं वो सबका आपको लिस्ट रेडी कर देना है और हर क्वेश्चन के बीच में आपको स्पेस प्रोवाइड करना है ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो अच्छे से आपकी क्वेश्चनरी फिल कर सके और आपको आंसर दे सके। सो जिसको आप एडमिशन फॉर्म बोलते हो, इन स्टैटिस्टिकल इट इज कॉल्ड क्वेश्चनरी। A list of question that is called questionnaire. A list of logically arranged question relevant to the object of the study. मतलब आपकी जो स्टडी है जिसका पर्पस जो है उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन रेडी करने हैं। जैसे कोई कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाता है तो बैंक उसके रिलेटेड उसको फॉर्म देती है, तो उसके अंदर होगा कि कौन से टाइप का अकाउंट आपको ओपन करवाना है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, आपका पान कार्ड नंबर क्या है, इनकम टैक्स नंबर, वो सब होगा। लेकिन जब स्कूल के अंदर स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है तो वो क्वेश्चन इलॉजिकल हो जाएगा, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि उसको कॉमर्स के अंदर एडमिशन लेना है। तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको रेडी कर देनी है। A list of logically arranged questions relevant to the object of the study is made. The space between the question is provided for the answer. जो भी क्वेश्चन है तो उसके पास में आपको एक स्पेस देना है ताकि रिस्पोंडेंट अच्छे से वो क्वेश्चन फिल कर सके। So a list of questions prepared in such a way that is called questionnaire. And the method of obtaining information using
such type of questionnaire is called a method of questionnaire. The questions in the questionnaire should be short and simple so that respondent can understand the question easily and answer them. This method is quite useful when the field of area from which the information is to be collected is very wide. Since there is a considerable saving of time and cost in this method, it is the most economical method of inquiry. Questionnaire may be used in direct inquiry as well as indirect inquiry. There are two ways of collecting information by questionnaire: by post and by a numerator. So whenever you prepare any questionnaire, one thing must clear that question in the questionnaire should be short and simple. Why short and simple? Because we can easily collect information from respondents. So your question must be short, simple and understandable. आपके क्वेश्चन शॉर्ट होने चाहिए और सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो आपको फटाफट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन रखोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. और आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब सामने वाला उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, वही लैंग्वेज के अंदर रेडी करना चाहिए. एंड व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल. जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी आपकी वाइड एरिया है तो ये मेथड मोस्ट सुटेबल है. इससे आपका टाइम, सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, बिकॉज दिस मेथड रिक्वायर लेस टाइम एंड कॉस्ट. जैसे गुजरात के अंदर 10 लाख स्टूडेंट हैं 10th के अंदर. अब 10 लाख स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका स्कूल का नेम, मीडियम ऑफ स्टडी, उनका जेंडर, सब इंफॉर्मेशन चाहिए. अब 10 लाख है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी. तो गुजरात बोर्ड ने क्या किया कि स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके लिए उसने बोर्ड के फॉर्म बना दिए और हर स्कूल को दिया कि भाई ये बोर्ड के एग्जाम के फॉर्म है, तो ये फॉर्म के साथ क्लास टीचर जाए और स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले. तो क्लास टीचर जो था, आपने भी 10th के बोर्ड के फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो क्लास टीचर ने सबको दिया कि भाई आपको सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड करनी है. तो सभी स्कूल के स्टूडेंट ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी. फिर जो इंफॉर्मेशन मिली, फिर जो क्लास टीचर है उसने ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट में वो सेंड कर दी. तो बोर्ड को वहाँ गांधीनगर में पूरे 10 लाख स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिल गई. तो देखो कितना सिंपल हो गया, क्योंकि 10 लाख स्टूडेंट है तो उसकी डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक फॉर्म आपने रेडी कर दिया और वो फॉर्म के अंदर जो टीचर है उन्होंने सब इंफॉर्मेशन फिलअप करवा दी, तो पूरे गुजरात से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ये एक अच्छी मेथड है. और जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड, वी कैन कलेक्ट अ इंफॉर्मेशन बाय मेथड ऑफ क्वेश्चनरी. बट आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनरी, there are two ways of collecting information: by post, by a numerator. एक ये है कि आपको जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है उसको क्वेश्चनरी बाय पोस्ट भेज दो, या उसको ईमेल कर दो, या उसको व्हाट्सएप कर दो और उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई मैंने तेरे को क्वेश्चनरी सेंड की है तो प्लीज़ उसको फिलअप करके मेरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर दे. और बाय अ न्यूमरेटर, क्वेश्चनरी के साथ आप न्यूमरेटर को भेजो तो वो रिस्पोंडेंट की पर्सनली विजिट करेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चनरी रेडी कर दी और फिर जो स्कूल के टीचर हैं उनको वो दे देंगे वो क्वेश्चनरी. तो वो न्यूमरेटर हर
पर्सन के घर पे जाएगा और पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देगा। तो बाय पोस्ट और न्यूमरेटर उसके डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चनरी कैसी होती है, क्वेश्चन कैसे रेडी किया जाता है। तो लुक एट दिस इज द सैंपल ऑफ क्वेश्चनरी। अ स्पेसिमेन मीन्स सैंपल, questionnaire for collecting information of the study habits of the 12th standard students of Gujarat state. Here investigator want to collect information about the habits of 12th standard student. तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको जानना है कि 12th कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनकी हैबिट क्या है। तो देखो उन्होंने एक लॉजिकली क्वेश्चन रेडी कर दिया है। फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर द आंसर। तो यहां पर जो स्टूडेंट है उसका नाम लिखेगा। सेक्स मीन्स फीमेल या मेल, सपोज मेल है तो मेल पर ही यहां पर वो टिक कर देगा, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर देगा। प्लेस तो जैसे हिम्मतनगर है या प्रांतिज है या राजस्थान है। विलेज तो हिम्मतनगर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट है तो साबरकांठा आ जाएगा। स्कूल नॉन टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट, टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो सेल्फ फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं, सो नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड अदर्स, सो कॉमर्स स्टूडेंट टिक हियर कॉमर्स। मीडियम ऑफ स्टडी दैट इज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो हियर इंग्लिश मीडियम। स्कूल टाइमिंग सो 8 to 1:30 या 8 to 1 या 10 to 5, जो भी स्कूल का टाइम है प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर योर डेली स्कूल होमवर्क? इफ स्टूडेंट्स डेली स्पेंड 2 hours फॉर होमवर्क, 3 hours और 1 hour, so here 2 hours, 1 hours. Average time spent daily for reading and preparation. So how much students spend daily for reading and preparation? So 12th commerce students suppose spend 2 hours for study or 3 hours or 4 hours for study. So here he should mention about time spent behind study. Then mode of entertainment, how much student get entertainment by sports? Some of the student sports like basketball player या cricketer or watching film or music, spending time with family members. So suppose student is interested in film or TV, so here he tick mark film or TV. How much time do you spend for entertainment? So suppose 1 hour, 2 hours, so here he mentioned for entertainment I am spending 2 hours. Average hours of daily sleeping time, so sleeping time 6 hours, 8 hours, so here he mentioned. So this is the specimen. Here investigator want to collect information about the habits of 12th standard. और 12th standard है कॉमर्स के स्टूडेंट, उसकी हैबिट क्या है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो लॉजिकल फॉर्म के अंदर उसने अरेंज कर दिए एंड अ स्पेस इज प्रोवाइड फॉर द आंसर्स। सो सच टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चनरी। तो ये क्वेश्चनरी हो जाएगी। तो इससे आप इंफॉर्मेशन वहां पर कलेक्ट कर सकोगे। हर क्वेश्चन के सामने स्पेस प्रोवाइड किया है आपने, तो ये क्वेश्चनरी है। तो यहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। देखो लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के सामने स्पेस दिया है, कहीं पर ऑप्शन भी दिया है। जितने ऑप्शन होंगे उतना अच्छा है, तो फटाफट टिक मार्क हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन इजी है, शॉर्ट है और अंडरस्टैंडेबल है। तो ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अब मैं डिस्कशन करने वाला वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनरी। एक आइडियल क्वेश्चनरी के लिए क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए? फर्स्ट, एवरी क्वेश्चनरी मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर और एन एप्रोप्रिएट टाइटल so that the reader gets clear idea
about the purpose of the study. So whenever we send a questionnaire to respondents, we must send a covering letter, means one request letter. In request letter, we should mention that your information is very useful for us. Please provide a correct and complete information. जब भी आप क्वेश्चनरी दो तो उसके साथ रिक्वेस्ट लेटर कब भेजना है? जब बाय पोस्ट भेजते हो तो क्वेश्चनरी के साथ एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना चाहिए. उसमें आपका इंट्रोडक्शन देना चाहिए, आपने उसको क्वेश्चनरी क्यों सेंड की है, उसका पर्पस ऑफ द स्टडी देना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि ये आपकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो हमको रिसर्च करने के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ऐसा एक कवरिंग लेटर भेजना चाहिए. जैसे इस साल 2021 में पॉपुलेशन की स्टडी है तो गवर्नमेंट क्वेश्चनरी सबके घर पे बाय पोस्ट नहीं भेजेगा, न्यूमरेटर भेजेगा. तो इस साल आपके घर पे भी न्यूमरेटर आएंगे, लेकिन वो सीधे इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं इस स्कूल का टीचर हूँ और मेरे को गवर्नमेंट ने भेजा है पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट क्या है, पुअर पर्सन कितने हैं, कौन से रिलीजन के कितने पर्सन हैं, सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए, तब आप इंफॉर्मेशन उसको दोगे. सो एवरी क्वेश्चनरी मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर or an appropriate title so that the reader gets clear idea about the purpose of study. तो आपके क्वेश्चनरी पर एक टाइटल अप्रोप्रिएट होना चाहिए. जैसे लास्ट क्वेश्चनरी थी तो उसके अंदर लिखा है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टडी हैबिट्स ऑफ द 12th स्टैंडर्ड. तो 12th स्टैंडर्ड को स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा भाई ये स्टडी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए. जैसे 10th का बोर्ड का फॉर्म था तो उसमें बोर्ड का इंफॉर्मेशन लिखा था कि भाई एग्जामिनेशन फॉर्म. 11 कॉमर्स के अंदर आप स्कूल में गए तो फॉर्म पे लिखा था एडमिशन फॉर्म, तो आपको क्लियर आइडिया हो गया कि भाई एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है. सो एवरी क्वेश्चनरी मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर और एन अप्रोप्रिएट टाइटल एकदम बोल्ड लेटर के अंदर होना चाहिए. जैसे आप कोई भी स्कूल में जाओगे तो एडमिशन फॉर्म बोल्ड लेटर के अंदर थोड़ा फॉन्ट बड़ा होगा और टाइटल के अंदर स्कूल का नेम लिखा होगा. सो द रीडर मीन्स रिस्पॉन्डेंट्स गेट्स क्लियर आइडिया अबाउट द पर्पस ऑफ स्टडी. तो रिस्पॉन्डेंट को मालूम हो जाएगी क्वेश्चन किसके लिए है. सेकंड थिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. तो जितने क्वेश्चन कम हो वो अच्छा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए. द फ्यूअर नंबर ऑफ क्वेश्चन हैव ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स. लॉन्ग क्वेश्चन डिस्करेज the respondent to provide accurate answers, particularly towards the end of questionnaire. तो क्वेश्चनरी के अंदर जो क्वेश्चन है वो कम से कम होने चाहिए. इट शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि ज्यादा सपोज क्वेश्चन रखते हो सो इट डिस्करेज द रिस्पॉन्डेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. उसमें से रिस्पॉन्डेंट डिस्करेज हो जाएगा. जैसे आप स्कूल के अंदर एडमिशन फॉर्म के लिए गए तो 8 या 9 या 10 क्वेश्चन होंगे. अब 100 क्वेश्चन दिए जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, भाई इतना बड़ा बड़ा फॉर्म थोड़ी ही होता है. तो कम से कम क्वेश्चन होना चाहिए, और जितने कम क्वेश्चन है तो फटाफट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. जैसे 9 to 10 क्वेश्चन रखे तो फटाफट वो फिलअप करके आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे. The fewer number of questions have greater chance of getting better response. जितने कम क्वेश्चन उतना रिस्पॉन्स आपको ज्यादा मिलेगा, फटाफट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. लॉन्ग क्वेश्चन डिस्करेज द रिस्पॉन्डेंट टू प्रोवाइड accurate answer, particular towards the end of questionnaire.
So long question sometimes discourage the respondent to provide accurate information, क्योंकि सबको लगेगा इतने सारे क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए। जैसे स्कूल के अंदर आए तो स्कूल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। फिर स्कूल के बारे में आप ऐसे पूछो कि भाई ऐसे लिखना है स्कूल के बारे में, या कॉमर्स के बारे में आपको लॉन्ग लिखना है कि क्यों आपने कॉमर्स लिया, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, वो रिस्पोंडेंट को डिस्करेज कर देगा। तो आपको तो जो आपका पर्पस ऑफ स्टडी है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन रखने चाहिए। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। The number of questions in the questionnaire should be consistent with the purpose of the inquiry. So, your question should be consistent with the purpose of the inquiry. Means in questionnaire you have to put a question which is relevant to your study. Like in 11 commerce admission form, name, address, birth date, contact numbers, these are the relevant questions. लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन लिखोगे कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, Who is your favorite cricketer, who is your favorite film star, this is irrelevant questions. अगर आप बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए जाओगे तो उसके अंदर ऑप्शन होगा कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इज ओपन, सेविंग, करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन वही क्वेश्चन 11 कॉमर्स के लिए इरिलेवेंट हो जाएगा। स्कूल के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं रख सकते कि विच अकाउंट डू यू वांट टू ओपन, सेविंग, करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो जो भी पर्पस है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन होने चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इरिलेवेंट क्वेश्चन है उसको इग्नोर करना चाहिए। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। फोर्थ नंबर, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, short and understandable. This is the most important quality. In your questionnaire, your question must be simple, short and understandable. They should not be ambiguous and dual in meaning. For example, if the "as are you educated?" the respondent cannot understand the meaning of educated. Does it mean the education up to secondary or higher secondary or graduate? Instead, the question should be, what is your education level? Following 5 questions can be considered for the answer to the question: up to primary, up to secondary, up to higher secondary, up to graduate, uneducated. So whenever you arrange a question in questionnaire, your question should be simple in language and short, so you will get quick answers from respondents and understandable. आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जिसको रिस्पोंडेंट अच्छे से समझ सके और फटाफट आपका आंसर दे सके। दे शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, मतलब डबल मीनिंग वाले क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए जिससे कंफ्यूज हो जाए। ऐसे ड्यूल मीनिंग वाले क्वेश्चन आपको नहीं रखने चाहिए क्योंकि वो डिस्करेज हो जाएगा। लाइक एक एग्जांपल है, इफ द क्वेश्चन आर यू एजुकेटेड, if you ask a question in questionnaire, are you educated? So here respondents may be confused. Now what is the meaning for educated? Educated in which sense? मतलब प्राइमरी एजुकेशन लिया है वो एजुकेटेड है, हायर एजुकेशन लिया है वो, तो ये उसको कंफ्यूज कर सकता है। इट इज एम्बिग्यूअस, मीन्स ड्यूल मीनिंग है, उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो उसकी जगह आपको ऐसे क्वेश्चन रखने चाहिए, व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल, आपका एजुकेशन का लेवल क्या है। आपने अगर सपोज प्राइमरी तक
पढ़ाई की है तो प्राइमरी तक टिक कर दो, आपने सेकेंडरी पढ़ाई की है तो सेकेंडरी टिक कर दो, आपने हायर सेकेंडरी स्टडी किया है तो हायर सेकेंडरी, आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट को टिक कर लो, और अनएजुकेटेड तो वहां पर टिक कर लो, तो एक अच्छा है। सो इंस्टेड ऑफ आर यू एजुकेटेड वी हैव टू पुट द क्वेश्चन व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, तो इससे वो कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप पढ़ाई करते थे तो कई बार एमसीक्यू ऐसा आता था और जिसका आपको मीनिंग नहीं मालूम था तो आप कंफ्यूज हो जाते थे, आप गलत क्वेश्चन का आंसर लिख देते थे। तो लैंग्वेज शॉर्ट, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और जिसके ड्यूल मीनिंग निकले ऐसे क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि सम ऑफ द वर्ड हैव ए ड्यूल मीनिंग, जैसे पेट्रोल, PATROL, PATROL पेट्रोल, एंड PETROL, सो बोथ आर पेट्रोल। लेकिन एक पेट्रोल जो है जो आप व्हीकल के अंदर लेते हो वो है, और एक व्हीकल पुलिस के लिए है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसको भी पेट्रोलिंग कहते हैं, क्राइम पेट्रोल एक प्रोग्राम आता है, तो इसका ड्यूल मीनिंग हो जाएगा। तो कोई भी अगर वर्ड है वो ड्यूल मीनिंग वाले नहीं रखने चाहिए, एक अच्छे से मीनिंग वाले होना चाहिए। सो क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। फिफ्थ नंबर, the arrangement of the question should be logical. The order of the question should be from general to specific. For example, what is your opinion about the smartphone? Do you use smartphone? This is improper arrangement of the question. The correct question is B followed by question A. So in questionnaire, the arrangement of question should be logical. कोई भी क्वेश्चनरी के अंदर आपके क्वेश्चन का ऑर्डर लॉजिकल होना चाहिए। जैसे पहले स्टूडेंट का नेम, फिर एड्रेस, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर बर्थ डेट, वो अच्छा है, लॉजिकल फॉर्म है। फिर आप पहले उसकी बर्थ डेट पूछ लो, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर एड्रेस, वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर नहीं है। द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम जनरल स्पेसिफिक। यहां पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपने किया, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन, आपका स्मार्टफोन के बारे में क्या ओपिनियन है, और फिर सेकंड रखा, डू यू यूज स्मार्टफोन। तो ये अरेंजमेंट लॉजिकल नहीं है। पहले आप ओपिनियन पूछते हो, मतलब ओपिनियन कब देगा, जब वो स्मार्टफोन यूज करता है वही तभी देगा ना ओपिनियन। फिर आप पूछते डू यू यूज स्मार्टफोन, ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल फॉर्म क्या है, पहले आपको ये रखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए, डू यू यूज स्मार्टफोन, फिर उसने लिखा यस, तो सेकंड ये होना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन, तो वो प्रॉपर रहेगा। फिर आप लॉजिकल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन नहीं रखते तो ये अच्छा नहीं है। सो द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। नाउ क्वेश्चन of sensitive nature or personal life should be avoided. For example, questions relating to the marital status, other sources of income of respondents, etc. If such questions are necessary in the survey, an assurance should be given to respondent that the information provided by him or her will be kept confidential and will not be used for any other purpose. So here in questionnaire, a question of sensitive nature or personal life should be avoided. Means you cannot ask a question having sensitive nature or personal life should be, आपको किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। जैसे 11th के अंदर एडमिशन के लिए आए तो उसको ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, योर फादर रेगुलरली पे इनकम टैक्स,
तो ऐसे तो ये तो सेंसिटिव नेचर के हो गए, वो नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि कोई भी सेंसिटिव नेचर का क्वेश्चन देने आंसर देने के लिए कोई रेडी नहीं होता। किसी का फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन रिलेटिंग मैरिटल स्टेटस, आप किसी को ऐसा नहीं पूछेंगे भाई आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो, ऐसा आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव नेचर के क्वेश्चंस हैं। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी अदर कोई सोर्स है इनकम की? कई लोग देखो दो दो सोर्स ऑफ इनकम रहती है, कई लोग जॉब भी करते हैं और प्राइवेट में बिजनेस भी करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है। आपका बैंक का लॉकर है, उसके अंदर क्या पड़ेगा, हाउ मेनी गोल्ड डिपॉजिटेड इन योर लॉकर, दैट इज पर्सनल क्वेश्चन, ऐसे नहीं पूछने चाहिए। इफ सच क्वेश्चंस आर नेसेसरी इन द सर्वे, an assurance should be given to respondent that the information provided by him will be kept confidential and will not be used for any other purpose. सपोज आपके सर्वे के लिए ऐसे सेंसिटिव नेचर के क्वेश्चन अगर सपोज रखने हैं, तो आपको एक एश्योरेंस देना चाहिए, एक गारंटी देनी चाहिए that your information will be kept confidential. आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। जैसे जब पॉपुलेशन की स्टडी होगी तो वो आपके घर के सभी लोग की बर्थ डेट जानेगा, वैसे कोई इजीली बर्थ डेट नहीं देगा, आधार कार्ड नंबर भी चाहिए, लेकिन वो आपको गारंटी देगा कि भाई ये पॉपुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए एंड योर इंफॉर्मेशन must be confidential and we will not be used for any other purpose. आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो कॉन्फिडेंशियल है और आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पर लीक नहीं होगी और कहीं पर हम अदर यूज नहीं करेंगे। सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन रखना है तो आपको देनी पड़ेगी। जैसे बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, बर्थ डेट देना पड़ता है, एलसी की जेरोक्स वहां पर देनी पड़ती है, इनकम टैक्स पे का तो पैन कार्ड नंबर देना पड़ता है। लेकिन बैंक नीचे आपको गारंटी भी देती है कि आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी और हम दूसरे पर्पस के लिए ये वो यूज नहीं करेंगे, ऐसा एक एश्योरेंस देना चाहिए। सो क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मैरिटल स्टेटस, अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट्स। If such questions are necessary in the survey, an assurance should be given to respondent that the information provided by him or her will be kept confidential and will not be used for any other purpose. Next, answer to the question should be free from any calculations. For example, avoid the question like what is the average income of the earning members of your family. So in your questionnaire your answer must be free from any calculation. कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन वाले रखोगे क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप 11 कॉमर्स के अंदर एडमिशन के लिए आए तो एडमिशन फॉर्म के अंदर कोई भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए। दो चार हमने एग्जाम्पल रख दिए 10th के कि ये 2-3 मीन मोड और मीडियन फाइंड करो, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो आपकी जो क्वेश्चनरी है उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना पड़े ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर एवरेज इनकम ऑफ अर्निंग मेंबर्स योर फैमिली, आपके फैमिली मेंबर की एवरेज इनकम क्या है। अब सपोज दो घर के अंदर कमाने वाले हैं तो दोनों इनकम की टोटल करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तब एवरेज इनकम मिलेगी। सपोज इन योर फैमिली 4 मेंबर्स आर एंगेज्ड इन सैलरी और प्रोफेशन, तो चारों की इनकम का टोटल और डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड मोर एनर्जी, एंड फॉर क्विकली आंसर्स we must be avoid calculation question.
तो क्वेश्चनरी के अंदर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना चाहिए. द क्वेश्चन हैविंग आंसर यस नो और मल्टीपल ऑल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड, but the question whose answer do not having specific option should be avoided. For example, what is your opinion about the semester system against the yearly system in the education? Since there are a lot of variation in the answer like strongly in favor, neutral, against, strongly against. So in your questionnaire अगर आपको क्विकली आंसर लाना है, सो क्वेश्चन आंसर यस और नो फटाफट लेने चाहिए. यस और नो के अंदर मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन रखो तो बहुत अच्छा है. या मल्टीपल ऑल्टरनेटिव जो भी क्वेश्चन है तो नीचे 4 ऑप्शन देने चाहिए तो वो फटाफट टिक कर सके. जैसे आपकी एग्जाम होती है उसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन होता है आप कितने क्विकली आंसर दे देते हो क्योंकि नीचे ऑप्शन अवेलेबल है. फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें टाइम लगता है आपका, लेकिन मल्टीपल क्विकली हो जाता है. तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन या और यस और नो के अंदर मिल जाए ऐसे क्वेश्चन रखोगे तो क्विकली आंसर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सेमिस्टर सिस्टम. आप किसी का ओपिनियन वाले क्वेश्चन रखोगे तो बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं. किसी को पूछोगे व्हाई आर यू सिलेक्टिंग अ कॉमर्स, सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन. कोई सीए के लिए कॉमर्स लेता होगा, किसी को सीएस करना है, किसी को सीएमए करना है, किसी को एमबीए करना है, किसी को बैंक मैनेजर बनना है. तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए. तो स्ट्रांगली इन फेवर हो, इन फेवर, न्यूट्रल हो, अगेंस्ट हो, स्ट्रांगली अगेंस्ट. तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल हो जाए तो बहुत बढ़िया है, फटाफट आंसर मिल जाएगा. यस नो के अंदर मिल जाएगा. किसी का ओपिनियन लेने वाले क्वेश्चन रखोगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सो दीज आर द क्वालिटीज फॉर आइडियल क्वेश्चनरी. आई रिपीट, व्हाट द क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड because this is the most IMP question for your exam. So characteristics of an ideal questionnaire, look at the quick view. First thing, every question must have a covering letter or an appropriate title so that the reader, means respondent, gets clear idea about the purpose of the study. तो suppose अगर आप क्वेश्चनरी किसी को बाय पोस्ट भेजते हो तो कवरिंग लेटर मतलब एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना चाहिए, क्योंकि क्यों आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन देना चाहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ऐसा भी लिखना चाहिए. एक एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए उसके ऊपर. सेकंड थिंग, ये याद रखो, एप्रोप्रिएट टाइटल. द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. जितने क्वेश्चन कम उतना आंसर क्विकली मिल जाएगा आपको. The number of questions in questionnaire should be consistent with the purpose of the inquiry. आपकी जो इंक्वायरी का पर्पस है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन रखने चाहिए. क्वेश्चन should be simple, short and understandable, so you will get quick response from respondents. ड्यूल मीनिंग वाले क्वेश्चन आपको अवॉइड करने चाहिए. द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल. तो आपका जो क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो लॉजिकल फॉर्म के अंदर होना चाहिए. देन क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव नेचर ऑफ पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड. सो इन योर क्वेश्चनरी यू मस्ट अवॉइड अ सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ क्वेश्चन. जैसे 11 कॉमर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आया तो उसके लिए उसके पापा इनकम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, बिकॉज इट इज सेंसिटिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन रिलेटिंग मैरिटल स्टेटस और सोर्स ऑफ इनकम. that is sensitive nature question, but sometimes it is required for your survey
you must give assurance that the information provided by him or her will be kept confidential. अगर सपोज आपके सर्वे के लिए वो क्वेश्चन नेसेसरी है तो उसको एक गारंटी दो कि भाई आपके इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होगी, किसी के साथ ये लीक नहीं होगी. आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशंस. जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. द क्वेश्चन हैविंग आंसर यस नो और मल्टीपल ऑल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड. इफ यू आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चन यू विल गेट क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट, क्योंकि मल्टीपल होंगे तो फटाफट वो टिक मार्क कर देगा. यस नो वाले क्वेश्चन है तो फटाफट यस यस और नो टिक कर देगा. तो ऐसे क्वेश्चन आपको रखने चाहिए. द क्वेश्चन whose आंसर डू नॉट हैविंग स्पेसिफिक ऑप्शन शुड बी अवॉइडेड. जो क्वेश्चन के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ऐसे क्वेश्चन आपको अवॉइड करना चाहिए. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कॉमर्स, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट साइंस, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नरेंद्र मोदी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट राहुल गांधी. So lots of variation about the opinion. सबके opinion different रहते हैं. So it should be avoided in your questionnaire. So these are the qualities required for your best questionnaire.